So, dear students, today we are going to begin the questions related to R.S. Agarwal. So that is why I have written the heading here, question bank. Now, my first question from R.S. Agarwal is, if P by Q is equal to minus 9 by 4, what will be the value of P by Q square? Very simple question. I think very easy question. Please try this out and tell me. So students, your answer, you are telling that ma'am the answer will be 18 by 4. But let me tell you, this question has P by Q का square. That means ये जो भी स्क्वायर आपको करना है वो इस पूरे नंबर का स्क्वायर होना चाहिए बेटा. लाइक मीन्स -9/4 का स्क्वायर. ठीक है. सो जब आपके पास पूरे इस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, दैट मीन्स you have to take care of that. If you are having the question in the form of fraction, that means you have to do the square of numerator as well and denominator as well. So जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -9 into -9 and 4 into 4. ठीक है. नीचे भी आप स्क्वायरिंग करेंगे, ऊपर भी आप स्क्वायरिंग करेंगे. तो 9 9s are give you 81, minus give you plus, 4 4s are 16. So the answer will come 81 by 16, not 81 by 4. ठीक है. 81 by 4 बेटा तब होता जब यहाँ पर 2 होता. यहाँ पर अभी 4 है ना. So that is why this question will come. So this was a very easy question. Now इसी question से just मिलता जुलता I am giving you one more question. Please tell me, if P square Q square is equal to 169 by 289, what will be the value of P by Q? Just opposite. What will be the value of P by Q? Now, don't speak the answer. If you must be knowing the answer, don't speak your answer, because I'll be asking one by one to each one of you. Yes. Okay. The question is, beta, P square Q square, like P square upon Q square is equal to 169 upon 289. Okay. Now you have to find out the value of P by Q. Very good. If you must be seeing the question, it is telling here P square upon Q square. If you talk about P square upon Q square means यहाँ पर जब भी बेटा ये स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका मतलब ये कि ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है. ठीक है. सो अगर आप बात करो यहाँ पर सिंपली आपसे बोला जा रहा है यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P by Q. तो आपको ये चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर है. सिंपल मेथड है. आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड 81.1 81.4 ये सब वाला क्वेश्चन ही नहीं है बेटा. आपको सिंपली करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है. नाउ यू मस्ट बी नोइंग 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13 and 289 is the square of 17. So that means अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है P by Q की, so the answer will be only 13 by 17. आपको केवल ये फाइंड आउट करना था कि किस नंबर का स्क्वायर है जो सामने दिया हुआ है. So it means the answer will be 13 by 17. So whose answers are 13 by 17? Their answers are absolutely correct. इसके अलावा अगर आपका आंसर है बेटा, it means somewhere you were wrong. Okay. Now students, tell me, what will be the square of 101? The method I have already told you in the beginning. How can you solve without taking directly square? आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं करना है बेटा. हाँ, 101 multiply by 101. Don't solve this. ठीक है. You just solve as the method told by me in the beginning only. Use the identity and tell me the answer of it. 101 square. So the students, I have given you the question 101 square.
Now what to do? 101 can be written best as a 100 plus 1. ठीक है? So 100 plus 1 का square जो होगा वही होगा 101 का square. Now if you remember I told you how to split this. It can be in the form of a square 2ab plus b square. So जब आप इसको solve करोगे बेटा तो a की जगह पर आएगा 100, 2 will remain 2, a की जगह पर आएगा 100, b means 1, b square means again 1 का square. Now simply solve it. 100 square means you will have 10,000. It will give you 200 and this will give you simply 1. So the answer for this particular question will be 10201. 10201 will be the answer for this particular question. 10201. Somebody was telling 15,000, 14,000. This will not be the answer, beta. Okay, this method was already told by me in the previous concept. Remember, if beta you know directly the answer. For example, you have a number 121 and 256. So you can simply write down your answer directly because as you all know that 121 is 11 का square होता है, 256 16 का square होता है, तो आप जो इसका आंसर है वो डायरेक्टली लिख सकते हो, that is 11 by 16. लेकिन ये कब लिख सकते हो? जब आपको स्क्वायर रूट याद होंगे. ठीक है, अगर आपको सिंपल स्क्वायर रूट याद है तो इस आंसर को आप डायरेक्ट लिख दिया आपने. लेकिन अगर सपोज आपको लगता है कि आई हैव अ लार्जर नंबर, like शशांक has just mentioned it that ma'am if it is a larger number, so we can take any of the method. Now you have two methods. You can either use prime factorization or you use simply the division method and take out the prime factorization separate, so take out the square root separately. Like 625 को आपने अलग सॉल्व कर लिया, 729 को आपने अलग सॉल्व कर लिया एंड लास्ट में आंसर को आपने कंबाइन कर दिया. सो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो तो 625 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 25 एंड 729 का स्क्वायर रूट होता है 27. सो आपका ये वाला आंसर और ये वाला क्वेश्चन जो था दोनों का, दोनों ही इजी थे. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. अब आप सोच रहे होगे कि ना 13 का कोई स्क्वायर रूट होता है और ना 36 का कोई स्क्वायर रूट होता है, देन व्हाई मैम हैज गिवन दिस क्वेश्चन. यस यस बेटा स्पीक. So very rightly told by Amit. See 3 whole 13 by 36 देखकर आपको ये नहीं समझना है कि 13 किसी का स्क्वायर नहीं होता है. आपको ये चेक करना है कि बेटा ये मिक्स्ड के फॉर्म में लिखा है, तो आप पहले इसको नॉर्मली फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व करो. तो जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इट. जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद आप ऊपर वाले को ऐड करोगे जैसे आप सॉल्व करते हो. तो सिंपली मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में सॉल्व करते हैं आपको पता है. After solving you will get it 121 by 36. And remember बेटा जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसका सॉल्यूशन जरूर होता है. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं आएगा कि जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड है जिसका आंसर ही ना आ रहा हो. ठीक है, सो जब आप उसको सॉल्व करोगे यू आर गेटिंग 121 upon 36 and which you must be knowing 11 is of 121 is of 11 and 36 is of 6. so ये आ गया आंसर 11 by 6. but remember चूंकि आपका जो क्वेश्चन था बेटा वो था इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड. इट मींस इट विल गिव यू 6 1s are 6 and 6 5 11. so 1 whole 5 by 6 will be the answer for this particular question. ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन. नाउ बात आती है लास्ट वाले की. लास्ट वाले में ना कोई ओके श्योर. In this question 80 upon 405 you must be thinking कि ये तो यहाँ पर आपको मिक्स्ड भी नहीं दिया है, प्लस 80 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 405 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता. इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक यूज किया गया है. ठीक है, सो बस आपको वो लॉजिक टेस्ट करना है. अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हो तो आप तुरंत लॉजिक पकड़ लोगे, लेकिन अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करते हो तो आपको ये याद रखना है ये दोनों नंबर आपस में कहीं ना कहीं कैंसिल होंगे. क्यों कैंसिल होंगे? You can see this is 80, that is 0 and this is 5. That means any number which is ending with 0 or 5, that means both the numbers can be cancelled by 5. ठीक है, so it means simply solve it by cutting with 5. so यहाँ पे जब आप solve करोगे बेटा आ जाएगा 16 5 जा 80 होता है and it will give you यहाँ पर आपके पास
5 8 जा 40, 5 1 जा 5. Now it means after cutting you are getting 16 by 81. अब ये कैंसिल नहीं होगा और 16 by 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? आई थिंक यू डोंट नीड माय हेल्प इन दैट. यस करेक्ट. 4 and 9 खत्म. इट द क्वेश्चन वाज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड बेटा. आपको उस क्वेश्चन को उस फॉर्म में देखना है केवल. ठीक है. Now one more thing I want to tell you beta, one more question is left that is very important, extremely important, which I will tell you, which is related to your RS Agarwal. That अभी तक हमने क्या पढ़ा? Square root of the numbers which are perfect squares. ठीक है. अभी तक हम केवल उनके square roots निकालते थे जो numbers already squares होते थे. ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर होते थे. लेकिन अब आपको क्या करना है? आपके आरएस अग्रवाल में टॉपिक दिया है कि उन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना जिनका स्क्वायर होता ही नहीं या दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है 16 का निकालना, आपको पता है आंसर आता है 4. आपने पढ़ा है 25 का निकालना, वो भी आपको पता है स्क्वायर आता है, स्क्वायर रूट आता है 5. लेकिन अगर मैं आपको नंबर दे दूं 11, ठीक है, अगर मैं आपको नंबर दे दूं 11 तब क्या होगा? या मैं आपको नंबर दे दूं 3 तब क्या होगा? 5 दे दूं तब क्या होगा? 7 दे दूं तब क्या होगा? So we have to also come to know, we have to also think about it that what will be the square root of 11, what will be the square root of 3, 5, 7. Remember जब आप इनका स्क्वायर रूट निकालते हो बेटा तो आपको एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट आंसर होता तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होते. ठीक है. सो रिमेंबर they are not the perfect square numbers, they are the non perfect square numbers. तो आप इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? That I will be recording it in this video only. Please watch it after the class. Let's understand how to find out square root of these numbers which is told by me. So for example, we are finding out the square root of 11. I think all of you are knowing that 11 is not a perfect square number. ठीक है, 11 का स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व होता है. So हम सबसे पहले क्या करेंगे? जाहिर सी बात है ये डेसिमल में आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? We will simply write it down in the form of division method. 11 को हम लिखेंगे 11. Now remember, आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपको कितने, because as I have already told you कि आंसर आपका जो आएगा वो डेसिमल में आएगा. आप डेसिमल में आएगा या आप याद रखिएगा डेसिमल कैन बी एंडलेस नाउ हियर. ठीक है, आपके पास डेसिमल के बाद वैल्यूज आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी. तो आपको करना क्या है? आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने डेसिमल प्लेसेस लेनी. मे बी क्वेश्चन में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस दिया हो, या हो सकता है क्वेश्चन में अप टू 1 डेसिमल प्लेस दिया हो, या क्वेश्चन में अप टू 3 डेसिमल प्लेस दिया हो. आपको क्वेश्चन में भी दिया रहेगा कि आपको कितने अप टू डेसिमल आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले सपोज आपको बोला जाता है कि आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस सॉल्व करना है. ठीक है, तो याद रखो अगर आपको बोला गया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस सॉल्व करना है तो आप अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस सॉल्व करके चलोगे. ठीक है, कैसे? सी 11 को छोड़ दो, 11 से आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट अ डेसिमल नाउ. सपोज आपके क्वेश्चन में है दैट यू हैव टू सॉल्व द स्क्वायर रूट ऑफ 11 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो आपको क्या समझ के चलना है? अगर लिख करके आया है 2 डेसिमल प्लेस तो आपको अपने मन में अज्यूम करना है 3 डेसिमल प्लेस. ठीक है, और 3 डेसिमल प्लेसेस मींस याद रखिए कि अगर आपको 3 डेसिमल प्लेस लेनी है तो आपको जस्ट उसका डबल आपको 0 देना है. ठीक है, जस्ट डबल आपको 0 देना है. दैट मींस आप यहाँ पे देंगे 1 पेयर ऑफ 0, another pair of 0 and one more pair of 0. ठीक है, total there will be 6 zeros. Fine. Now move on to this one. After this one, suppose यही क्वेश्चन अगर आपका होता up to 1 decimal place, up to 1 decimal place, तब आप क्या सॉल्व करते बेटा? 2 decimal place. और अगर आप 2 decimal place अगर आप सॉल्व करते तो that means you must be taking 2 pair of zeros. It means यहाँ पर 6 जीरो की जगह आपके पास आते 4 zeros. Okay? Suppose this. Fine.
तो याद रखिएगा, आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन कि आपको कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू अनदर टाइम टेलिंग यू। अगर क्वेश्चन में लिखा है 1 डेसिमल प्लेस तो आप उसका डबल जीरो रखोगे, आप उसको 2 प्लेसेस तक सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर आपको लिख के रहे हैं 2 डेसिमल प्लेस तो आप उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करोगे। अगर आपका क्वेश्चन लिख के आया 3 डेसिमल प्लेस तो आपको सॉल्व करना है 4 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, for your convenience. Now one more thing, that जितने भी डेसिमल प्लेसेस आप सॉल्व कर रहे हैं उसका डबल टाइम जीरो यू विल टेक। ठीक है, सो नाउ सपोज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 11 का स्क्वायर रूट अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस है, इट मींस वी आर टेकिंग नाउ 2, 2 का मतलब 4 zeros, I have taken 4 zeros. Now simply you will make the form of pairs, पेयर बना दिया आपने। After making the pair, simply start solving जैसे आप normally solve करते थे। Now it will give you 3 3s are 9. यहाँ पर आएगा आपके पास 3 3s are 9. Now it will give you 2. यहाँ पर उतरेगा डबल जीरो। नाउ ये और 3 मिलाकर के हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, ना वहां पर आपके पास आया 200। नाउ डेसिमल आपके पास इस प्लेस में नीचे उतर रहा है, इट मींस आपके पास डेसिमल ऊपर भी इधर आएगा। ठीक है, अंडर रूट 11 यू आर सॉल्विंग। नाउ रिमेंबर, as you all can see that 200 is written here. ठीक है, डेसिमल यहाँ पर है, बट आप अपने मन में अज्यूम करोगे हमारे पास कोई डेसिमल नहीं है, सो इट्स 200। और आपको 6 के साथ क्या रखना, लेट्स सी दिस। 2 टाइम्स अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है 124। लेट्स ट्राई 3 टाइम्स, 3 3 are 9, 3 6 are 18, 189, which is more closer to 200. ठीक है, so it means we will take it 3 times, so here it will also come 3, it will give you 189. Now simply solve it. 10 में से 9 गया, बचेगा 1, 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1, एंड यहाँ पर आप ऑलरेडी बोरो दे चुके हैं, so it will get cancelled. Now you will have 11. अब आप क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये डबल जीरो भी उतर जाएंगे नीचे और ये वाला 3 यहाँ पर ऐड होगा, दैट मींस 63 प्लस 3 which will give us 66। ठीक है, 66 आ गया। अब आपको 66 के साथ अपना नंबर लेना है which can not exceed 1100। ठीक है, तो अगर आप बेटा 2 टाइम्स लेते हो तो आपको पता है 6 2 जा 12 होता है, मतलब ये इस नंबर को क्रॉस कर देगा। It means you can only take 1 time. So यहाँ पर आएगा 661, 1 जा 661 only. So 1 times it will give you 661. अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको यही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको आगे क्या बच रहा है आपको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, आगे क्या बचता है आपको बिल्कुल भी उसका ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको अब चाहिए केवल ऊपर, और आपने ऊपर देख लिया, आपको मिल गया 3.31। यू हैव गॉट 3.31, बट क्वेश्चन ने हमको बोला था दैट यू हैव टू टेक अप टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस, बट हमने क्या किया है, क्वेश्चन को 2 डेसिमल प्लेस तक। तब आपको क्या करना है बेटा, यू हैव टू सिंपली सी दैट आफ्टर 1 decimal place whatever the number is written, that is this one। ठीक है, आपको यहां तक क्वेश्चन चाहिए, आपने ले लिया, लेकिन आपको ये चेक करना है कि इस डेसिमल, इस नंबर के बाद जो नंबर लिखा हुआ है what is that। suppose that number is 1 0 2 3 4, तो इट मींस यू विल नॉट डू एनी चेंज, आप अपना आंसर लिखोगे। आपको याद होगा राउंड ऑफ पढ़ा था आपने क्लास 5 में, यहाँ पर आपको बेटा राउंड ऑफ ही यूज करना है। ठीक है, कैसे राउंड ऑफ करोगे एक बार देख लो, 3.31 लिखा हुआ है, सो अगर आपके पास यहाँ पर है 0 1 2 3 4, इट मींस देयर विल नॉट बी एनी चेंज, आपका आंसर हो जाएगा 3.3। बट सपोज आपके पास नंबर आते हैं 5 6 7 8 9, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता, आप जब सॉल्व करते तो आपका सपोज आंसर आता 3.37, तो उस केस में आप आंसर क्या लिखते, 3.4, 1 + 1 उसमें कर देते आप और आंसर आ जाता आपका 3.4। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर नंबर अगर 1 है तो यू विल नॉट डू एनी चेंज, आपका आंसर हो जाएगा 3.3। I hope it is clear to you all. Please keep in your mind, this is one of the extremely important question, that square root of non-perfect square numbers. Fine.
Thank you very much.